Hello students, you know myself Dr. Suman Sharma. As you know, I am teaching you the synthetic dyes. Certain topics have been covered in previous lectures. Students, you are watching the videos continuously. Today we are taking a next part of synthetic dyes, that is on indigo dye. So we will study today properties, synthesis and uses of the indigo dye. Okay, so let us start today's lecture. Now, what is indigo dye? The word indigo is derived from a Latin word indicum. The dye became very popular in Europe. Indigo Fera Tictoria is the principal source of the dye, right? And here is the indigo plant with very beautiful flowers, right? Now, it is one of the oldest wet dye known. It occurs as glucosides indican in tropical Indian plants of Indigo Fero genus, Indigo Fera tictoria and European plant Isatis tictoria, right? अब इंडिगो का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो. फिर आता है सिंथेसिस ऑफ इंडिगो. फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ इंडिगो फ्रॉम aniline and ethylene oxide. In this method, aniline is treated with ethylene oxide to form N-phenyl 2-hydroxyethylamine, right? When the obtained compound is fused with sodium hydroxide and sodamide at 200 degrees centigrade, a disodium derivative is obtained. This disodium derivative is radially heated to 300 degrees centigrade and then cooled. Sodium salt of indoxyl is obtained, which on aerial oxidation gives indigo, right? So it's the total synthesis of indigo from aniline and ethylene oxide. Now next slide shows the reaction of the synthesis, right? Here is aniline, it is ethylene, it is ethylene oxide and it forms sodium salt. Then further reaction of this with NaOH and NaNH2 at 200 degrees centigrade, we get this type of product. Okay, then further reaction of this with at 300 degrees centigrade and then it's cool, we get this product, right? Then oxidation take place and finally we get indigo and it's the sodium salt of indoxyl, right? So it's the synthesis of indigo with aniline and ethylene oxide, right? फिर आता है ह्यूमेंस सिंथेसिस. इससे कैसे इंडिगो को सिंथेसिस किया जाता है? व्हेन एंथ्रेनलिक एसिड इज कंडेंस्ड with
chloroacetic acid and N-phenyl orthocarboxylic acid is obtained, right? When this compound is fused with sodium hydroxide and sodamide and subsequent decarboxylation yields indoxyl. Okay, oxidation of indoxyl by air yield the dye indigo, right? जैसा कि अभी हमने पिछली वाली सिंथेसिस में भी देखा था, जब एनिलीन से इंडिगो डाई बनाते हैं तो पहले इंडोक्साइल बनता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और तब हमको इंडिगो डाई मिलती है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। इसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं, राइट? हियर इज द एंथ्रेनलिक एसिड, its reaction with chloroacetic acid. First we get this product, then further reaction of this product with KOH and NaNH2 we get this product, right? Here is the ring formation take place. यहाँ पर 5 member ring बन जाती है और ये जो है हमको प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जब इसको हीट किया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी गेट इंडोक्साइल, ठीक है? फर्स्ट जो होता है प्रोडक्ट है वो हमको इंडोक्साइल मिलता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और हमको फाइनली इंडिगो डाई मिल जाती है, राइट? तो इट्स द total synthetic procedure of indigo with anthranilic acid, right? फिर आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इंडिगो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इंडिगो टिन इज अ डार्क ब्लू पाउडर। मेल्टिंग पॉइंट इसका 390 डिग्री सेंटीग्रेड होता है विथ coppery luxure, right? It is insoluble in water and soluble in most of the organic solvents. पानी के अंदर ये insoluble होता है, लेकिन जितने भी आपके कार्बनिक विलायक होते हैं उसके अंदर ये घुल जाता है। When reduced with sodium hyposulfite in alkaline medium, it converts into a water soluble leuco compound and that is indigo tin white, right? जब इसका अपचयन किया जाता है सोडियम हाइपोसल्फाइड के द्वारा एल्कलाइन मीडिया में, तो हमको इंडिगो टिन वाइट बनता है। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल ल्यूको कंपाउंड। द ब्लू कलर इज रीजनरेटेड व्हेन दिस एल्कलाइन सॉल्यूशन इज exposed to air, right? Here is the reaction. First is indigo tin blue, okay? जब इसका रिडक्शन होता है तो हमको इंडिगो टिन वाइट मिलता है और जब इस इंडिगो टिन वाइट का ऑक्सीडेशन होता है तो इंडिगो टिन ब्लू मिलता है। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? इंडिगो टिन के अपचयन से इंडिगो टिन वाइट मिलता है सफ़ेद, और इंडिगो टिन वाइट के ऑक्सीकरण से इंडिगो टिन ब्लू मिलता है, राइट? दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ डाइंग विद इंडिगो, राइट? इस रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है वो क्या है? आपका डाइंग जो प्रोसेस है उसकी टेक्निक पर बेस्ड है, आधारित है, राइट? यहाँ पर जो कलर चेंज हो रहा है ब्लू से वाइट और वाइट से ब्लू, तो इट्स इंडिकेट द डाइंग टेक्निक ऑफ इंडिगो डाई, राइट? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंडिगो टिन एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, सिस एंड ट्रांस, राइट? इंडिगो टिन जो है
वो दो तरह की समावयवता प्रदर्शित करता है। फर्स्ट इज सिस एंड सिस इंडिगोटिन एंड सेकंड इज ट्रांस इंडिगोटिन, और ये दोनों जो है वो रिवर्सिबल है, राइट। आउट ऑफ दीज trans isomer is stable, which is supported by the fact that its X-ray analysis shows the presence of a center of symmetry, which is possible only in trans forms. Trans form is also stabilized by hydrogen bonding, which is absent in cis form, right? यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सिस और ट्रांस इंडिगोटिन, उसके अंदर हम ये बात शो करते हैं कि जो ट्रांस आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सरे के द्वारा बता सकते हैं। और एक्सरे से ये पता पड़ता है कि प्रेजेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो केवल ट्रांस आइसोमर के अंदर ही पॉसिबल है, सिस आइसोमर के अंदर पॉसिबल नहीं है। और ट्रांस फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होती है इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। सिस फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं कि जो ट्रांस इंडिगोटिन है वो सिस इंडिगोटिन से अधिक स्टेबल होता है, राइट। फिर थर्ड वन इज सिंथेटिक डाइज, राइट। ऑन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, इंडिगोटिन गिव्स 5,5-7,7- टेट्रा क्लोरो इंडिगोटिन और 5,5-7,7- टेट्रा ब्रोमो इंडिगोटिन, राइट। Both are brighter than indigo blue and hence used commercially, right? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिगोटिन जब इसका क्लोरीनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड तो हमको ब्रिलियंट इंडिगो बी मिलता है, राइट। और जब इंडिगोटिन का ब्रोमिनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमो एसिटिक एसिड तो हमको ब्रिलियंट इंडिगो बी मिलता है, ओके। ये दोनों ही जो है ब्राइटर होते हैं देन इंडिगो ब्लू से, और इसको हम कमर्शियली यूज में लेते हैं, राइट। फिर आता है व्हेन इंडिगोटिन is sulfonated with fuming H2SO4, it gives 5,5-disulfonic acid, which is converted into its disodium salt when treated with sodium hydroxide, okay, and the obtained product is known as indigo keramine. It is soluble in water and used for dyeing woolen clothes. Okay? यहाँ पर हम देखते हैं ये रिएक्शन इसकी बता रखी है। रिएक्शन क्या शो करती है कि इंडिगोटिन जब इसकी रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमको इंडिगो केरामाइन मिलता है, राइट। इंडिगो केरामाइन इज डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ इंडिगो, राइट। और उसके बाद में हम ये बात शो करते हैं कि जो इंडिगो केरामाइन है ये पानी के अंदर घुल जाता है और इसको हम जो वूलन क्लोथ्स है उसको डाई करने के काम में लेते हैं, राइट। फिर आता है इंडिगो ऑन फ्यूजन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड gives एंथ्रेनलिक एसिड, ओके। जब इंडिगो को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ किया जाता है और हीट किया जाता है तो हमको एंथ्रेनलिक एसिड मिलता है, राइट। ओके,
देन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ इंडिगो विद concentrated HNO3 gives 2 molecules of ईसाटीन, राइट। उसके बाद फर्दर जो है इंडिगो की रिएक्शन जब सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ और उसका ओजोनाइजेशन करवाया जाता है तो हमको मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो ईसाटीन होता है, राइट। तो ये क्या है, कुछ जो है वो रिएक्शंस दे रखी है इंडिगो की कि उनसे जो है हमको फर्दर क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो और भी जो है बहुत से सिंथेसिस के मेथड हैं जिससे कि हम इंडिगो को, जो इंडिगो डाई है उसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये दे रखा है ईसाटीन, ठीक है ना। ईसाटीन क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C8H5O2N, ओके। और इसकी जब रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो हमको ईसाटीन क्लोराइड मिलता है, राइट। फिर ऑन ट्रीटमेंट विद ईसाटीन क्लोराइड with PCl5 suggesting the presence of a hydroxyl group, ओके। जब PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ईसाटीन क्लोराइड मिलता है। ये क्या शो करता है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ओके। फिर आता है ऑन बॉइलिंग विद एल्कली इट गिव्स ऑर्थो एमिनो बेंजोइल फॉर्मिक एसिड या एसाटिक acid, okay। Then further reaction of ईसाटीन with KCl then यहाँ पर हम देखते हैं इट्स अ ईसाटीन, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वुड बी असाइंड टू ईसाटीन विच हैव बीन फाइनली प्रूव्ड बाय इट्स सिंथेसिस, ठीक है। अभी जो हमने बातें डिस्कस करी हैं उससे ये पता पड़ता है कि जो ईसाटीन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनली हम इसकी सिंथेसिस से ही इसको बता सकते हैं। तो ईसाटीन की जो सिंथेसिस है जब हम करते हैं तो हमको फाइनली जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उसमें ये पता पड़ता है कि इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C8H5O2N विद प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दैट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ईसाटीन, राइट, ओके। फिर आते हैं इसके यूजेस क्या है, इसमें इंडिगो टिन being insoluble in water and cannot be used directly for dyeing. It is therefore first reduced to water soluble leuco compound that is indigo white in large vats by sodium hydrosulfide. The fabric to be dyed is then immersed in vats and then exposed to air which oxidize leuco compounds into insoluble indigo blue. Since aerial oxidation is slow, oxidation is usually done by passing fabric into a solution of chromic acid or perboric acid, right. Woolen fabrics are dyed with water soluble indigo caramine by directly immersing the fabric in dye solution and then drying, right. And it is used extensively by dyeing cotton. Its color is excellent in quality and stable to light washing, etc. Right? So it's the uses of indigo dye or indigo tin dye or ईसाटीन dye. All are the respective product of indigo dye, right.
Thanks, dear students.